Good morning, good afternoon, good evening, प्यारे बच्चों. In this lecture, we will be concentrating in projectile fired making an angle alpha with vertical. Now, if you compare this particular thing with the previous one, okay, then you will be able to understand the things very easily. Now, first, let's compare, and then we will be going ahead with this particular thing. Projectile fired making angle theta with horizontal. This is the previous situation. Velocity initially provided is u, and that makes an angle theta with horizontal. It's okay? The present situation. Projectile fired making angle alpha with vertical. Initially velocity u is provided. Okay? And that velocity vector makes with वर्टिकल एन एंगल अल्फा. ओके, दोनों सिचुएशंस में ये डिफरेंस है. साइमल्टेनियसली दोनों सिचुएशंस को वॉच करो. ओके, नाउ इफ यू कंसंट्रेट इन, ओके, दोनों का एक ही डायग्राम बना देते हैं. चलो, दिस इज योर यू, दिस इज एंगल थीटा, ओके, एंड with vertical angle is alpha. Mean alpha plus theta is equal to 90 degree. ठीक है? Okay? Mean your alpha is equal to 90 minus theta. Or other way, theta is equal to 90 minus alpha. फाइन. तो सिचुएशनल चेंज कुछ ऐसा मिलेगा. अब जब आप डेरिवेशन करते हो, हाउ बेसिकली इन दिस सिचुएशन यू वर गोइंग अहेड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आपका बनता था, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर इसके साथ एंगल थीटा बना रहा है. दिस एंगल, ये वाला एंगल हमने अकाउंट में लिया ना, तो दिस कंपोनेंट विल बी यू कॉस थीटा. ओके, और ये वाला कंपोनेंट बनता है यू साइन ऑफ थीटा. इट्स ओके. बट जो ये वाला सिचुएशन है, व्हेन वी आर टेकिंग, यू नो, व्हेन वी आर टेकिंग दैट एंगल ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल एंगल अल्फा, वी आर टेकिंग इनटू अकाउंट. ओके, वेलोसिटी वेक्टर मेकिंग एंगल अल्फा विद वर्टिकल, तब हम ये वाला जो कंपोनेंट हमारा बनेगा, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर इस एक्सिस के साथ एंगल अल्फा बना रहा है, तो ये कॉस कंपोनेंट होगा u cos अल्फा. इट्स ओके. एंड दिस अदर कंपोनेंट विल बी u साइन ऑफ अल्फा. ये आपका बेसिक डिफरेंस रहेगा. ठीक, रेस्ट ऑल विल बी सेम. फंडामेंटली थिंग्स आर सेम, नो चेंजेस देयर. ओके, अभी मैं डिराइव करूंगा, यू जस्ट ऑब्जर्व हाउ द थिंग्स आर गोइंग. नाउ, एज पर द गिवन सिचुएशन, लेट प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम O, दैट इज ओरिजिन 0 0, ओके, विद इनिशियल वेलोसिटी u, मेकिंग एन एंगल अल्फा विद वर्टिकल. इट्स ओके. नाउ दिस कंपोनेंट, because u vector is making angle alpha with this, will be u cos alpha, and the other rectangular component, that is this one, will be u sin of alpha. It's okay. Now, which type of path this is going to follow? Basically fired like this, so this will follow a path like this, and it will be parabolic. अभी उसको भी प्रूव कर देंगे बेटा. ठीक है. Let at t is equal to 0, the projectile is fired from here and reaches at point P after time t. The coordinates of P are xy. Okay, when this body is at P, okay, तो x coordinate का जो ट्रेवल है वो कितना होगा, x एक्सिस के अलॉन्ग. अगर आप कंसंट्रेट करो, ओके, दिस
when the body is at P, तो along x-axis basically the projectile is here. Okay, and this coordinate will be having a value x. And similarly, this will be along y-axis, the position will be y. It's okay. When at time t, आपका जो projectile है P लोकेशन पे पहुंचेगा. It's okay. ठीक है. Now, motion along horizontal. देखो, motion along horizontal, Sx is equal to uxt plus half axt square. ठीक है. Displacement along x-axis, initial velocity along x-axis, acceleration along x-axis. ठीक. Now, along x-axis the scenario is, जो x कोऑर्डिनेट है 0 के रिस्पेक्ट में कितना वैल्यू है उसका x, और डिस्प्लेसमेंट कितना बनेगा x माइनस 0. ओके, तो x वैल्यू बना, बिकॉज x नॉट इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, x, ठीक है, x नॉट 0, देन ux इज u साइन ऑफ अल्फा इनटू t. ठीक है, acceleration is equal to 0, therefore this term is equal to 0, because acceleration along x-axis is equal to 0. It's okay. Therefore, along x-axis the motion will be given by the situation sin of alpha into t. आप टाइम का वैल्यू प्लेस करते जाओ, keep placing the value of time. Okay, you will be getting the value of coordinate along x-axis. ठीक. Now motion along y-axis. Now motion along vertical, that is y-axis, displacement, initial velocity, time plus half acceleration टाइम स्क्वायर. जितने भी डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन सब वाई एक्सिस के अलॉन्ग लिए जाएंगे बेटा. ओके, नाउ एस वाई इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो, अब वाई कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू, वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू है विद रिस्पेक्ट टू 0, तो डिस्प्लेसमेंट यहां पे वाई बन जाएगा. अब वाई नॉट, मैं कोऑर्डिनेट की टर्म में चलूंगा, वाई माइनस वाई नॉट. ओके, वाई नॉट इज इक्वल टू 0, तो एस वाई का वैल्यू कितना बनेगा कोऑर्डिनेट टर्म में, दैट विल बी वाई इज इक्वल टू यू वाई इज, ओके, दैट इज अपसाइड. अब जो ये आपका y कोऑर्डिनेट भी ट्रेवल हुआ है, दिस इज अपसाइड, तो नेगेटिव ले रहा हूं. u y इज u cos alpha for the scenarios. Just see u cos alpha, but upward, so it will be taken as negative. u cos alpha into t plus half acceleration due to gravity, downward direction positive, g इंटू टाइम स्क्वेयर. आप नेगेटिव कंपनसेशन करना चाहते हो तो कर सकते हो. y इज इक्वल टू u cos ऑफ अल्फा इंटू t माइनस हाफ g t स्क्वेयर. इट्स क्लियर. नाउ अब यहां से मुझे y कोऑर्डिनेट मिल गया टाइम के साथ साथ. ठीक है, टाइम का वैल्यू प्लेस करो and keep getting the value of y. Now equation of path, that is equation of trajectory. Now equation of path, so what we will be doing, x coordinate से टाइम का वैल्यू, ओके, x कोऑर्डिनेट से टाइम का वैल्यू निकाला, t इज इक्वल टू x ओवर u साइन अल्फा, t इज इक्वल टू x ओवर u साइन ऑफ अल्फा. दिस इज फ्रॉम इक्वेशन 1. Now placing this in equation 2, placing value of t in equation 2, ये आपका equation 2 है, वैल्यू प्लेस कर दिया, we are getting a situation of this type. Further simplifying it, y is equal, this u and u gone, cos alpha over sin alpha is cot alpha. Okay, so this is cot alpha x minus हाफ g ओवर, ये g आउटसाइड से है, u स्क्वेयर
साइन स्क्वेयर अल्फा, ओके, दिस ऑल, और साथ में आया एक्स स्क्वेयर। चेक करो आराम से, ये बन गया कॉट अल्फा, एक्स माइनस हाफ जी एक्स स्क्वेयर ओवर यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर। तो ये आपका इक्वेशन ऑफ पाथ, दैट इज इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी बन गया। इट्स क्लियर? तो सिचुएशन इज सिमिलर ना, कुछ डिफरेंट तो नहीं है। नंबर 3, नाउ अबाउट वेलोसिटी। और देखो वही चीज यहां से पता चल रहा है, y इज x और x स्क्वेयर, तो हायर पावर पे डिपेंड करेगा, y एज y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वेयर, तो पाथ शुड बी पैराबोलिक। इट्स ओके। नाउ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल के लिए हम क्या कर रहे हैं, 0 टाइम पे फायर किया विद वेलोसिटी u, ठीक है, और t टाइम के बाद यहां पहुंच गया। t टाइम के बाद इसका वेलोसिटी कैसे होगा बेटा, अलोंग द टेंजेंट, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। अब इस वेलोसिटी को फाइंड करने का कोई टूल नहीं है, तो वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल, अलोंग वर्टिकल, वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल vx, velocity along vertical, that is vy. Okay, first let's take velocity along horizontal. Now velocity along horizontal कैसे डिपेंड करेगा टाइम पे, है ना, how it will be changing with time, let us see. v is equal to u plus at along x-axis. It's okay. Now velocity after time t is vx, जैसा हमने एज्यूम किया, ux इज इक्वल टू, ये कंपोनेंट इज u साइन अल्फा, u साइन ऑफ अल्फा प्लस एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस इज 0, तो वो टर्म हो गया 0। तो वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस इज u साइन अल्फा, इट इज नॉट टाइम डिपेंडिंग, टाइम के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि देयर इज नो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन नहीं है तो भाई वेलोसिटी में कोई चेंज हमें मिलेगा ही नहीं, ठीक है ना बेटा। ये लो क्वेश्चन नंबर। नाउ वेलोसिटी अलोंग वर्टिकल, नाउ हाउ द वेलोसिटी अलोंग वर्टिकल इज डिपेंडिंग ऑन टाइम, ओके, सेम थिंग, v इज इक्वल टू u प्लस at along y axis, इट्स ओके। vy वही अपवर्ड है u cos अल्फा, ये इनिशियल uy है आपका, vy हमें फाइंड करना है, ठीक है। vy इज टू बी कैलकुलेटेड इज इक्वल टू uy अपवर्ड, अपवर्ड मीन u cos अल्फा विद अ नेगेटिव साइन प्लस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड है, पॉजिटिव इनटू ये vy आपका अपवर्ड है अभी, तो देन यहां पे एक नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव का कॉम्पनसेशन कर दो बेटा, vy इज इक्वल टू u cos अल्फा माइनस gt, इट्स ओके। अब क्या करेंगे, आपके पास हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आ गया, टोटल वेलोसिटी फाइंड करना है। हाउ टू गो विथ पैरेललोग्राम ला, vx vy टोटल वेलोसिटी फाइंड करना है, तो दोनों को यूज करके पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दो, ओके, और दोनों vx और vy को यूज करके टोटल वेलोसिटी फाइंड कर दो, ठीक। अब vx का मैग्नीट्यूड प्लेस कर दूं, vx का मैग्नीट्यूड इज u साइन अल्फा और vy इज u cos अल्फा माइनस gt, ठीक है, और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, समथिंग लाइक दिस। नाउ अब ये ब्रैकेट टर्म a माइनस बी होल स्क्वायर ओपन करूंगा और cos 90 0, इट्स ओके। अब क्या करेंगे, दिस टर्म एंड दिस टर्म u स्क्वायर कॉमन, और साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा विल बी इक्वल टू 1, सो मैं डायरेक्टली लिखने वाला हूं। नाउ दिस इज द फाइनल थिंग व्हिच यू आर गेटिंग, ओके, अबाउट द टोटल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल। देखो टोटल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल हमारा एक टाइम डिपेंडेंट फैक्टर है, ओके, तो ये ध्यान में रखना है। नाउ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज द कांस्टेंट वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है। वर्टिकल वेलोसिटी के बारे में क्या हुआ है, वर्टिकल वेलोसिटी फर्स्ट डिक्रीजेस एज द बॉडी गोज फ्रॉम दिस पॉइंट टू टॉपमोस्ट पॉइंट,
वर्टिकल कंपोनेंट रिड्यूसेस और फिर वर्टिकल कंपोनेंट यहां से टॉप मोस्ट पॉइंट से जब यहां टारगेट पॉइंट तक आता है प्रोजेक्टाइल, वर्टिकल कंपोनेंट गोज ऑन इंक्रीजिंग डाउनवर्ड, ठीक है, एंड फाइनली जितना ये यहां पे स्टार्ट में था उतना ये डाउनवर्ड बन जाता है। ओके, ठीक, चलो नाउ टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम क्या टर्मिनोलॉजी लगा रहे हैं कि मोशन अलोंग वर्टिकल कंसंट्रेट करेंगे, पहली बात, ठीक है। अब ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट है ट्रेजेक्ट्री को दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा, ठीक है। यहां से यहां तक का टाइम, टाइम ऑफ एसेंट, यहां से यहां तक का टाइम, टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू, अगर हम टाइम ऑफ फ्लाइट को टी लिख देते हैं तो टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू t/2, ठीक। मतलब इनिशियली जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी u cos अल्फा था, t/2 टाइम के बाद वो 0 हो गया। मोशन अलोंग वर्टिकल कंसीडर कर रहा हूं बेटा, सो मैं वेलोसिटी और टाइम रिलेशन में कंसंट्रेट कर रहा हूं, तो फिर वेलोसिटी टाइम रिलेशन यूज कर लो। v इज इक्वल टू u प्लस a t along y axis, along y axis. It's okay. Now vy at the topmost point is equal to 0. uy upward minus u cos of alpha. It's okay. Now acceleration along y axis डाउनवर्ड है g, यहां से यहां का टाइम t/2, तो वी आर गेटिंग t इज इक्वल टू 2u cos alpha by g, ठीक है बेटा, इट्स क्लियर, ठीक। नाउ मैक्सिमम हाइट, नाउ मैक्सिमम हाइट के लिए भी आप सिमिलर सिचुएशन यूज करोगे। देखो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी की अगर बात करें कितना है, इनिशियली u था, इस एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है अल्फा, ओके, तो इट विल बी u cos अल्फा, ठीक है। मैक्सिमम हाइट पॉइंट ये आ गया, मैक्सिमम हाइट पॉइंट के ऊपर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हो गया 0। मोशन अलोंग वर्टिकल कंसंट्रेट कर रहा हूं बेटा, तो हाउ मच डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ये आएगी आपकी मैक्सिमम हाइट, ठीक है, ओके। तो डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी ये दोनों पिक्चर में आ रही हैं, एक्सेलरेशन पिक्चर में आ रहा है, तो देन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, इट्स ओके, अलोंग y एक्सिस, ये लो बेटा, क्लियर। नाउ फाइनली वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना है, 0 माइनस इनिशियल वैल्यू कितना है वर्टिकल कंपोनेंट का, u cos अल्फा स्क्वायर, तो u स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा, इट्स क्लियर, इज इक्वल टू एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस g है डाउनवर्ड पॉजिटिव, एंड डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस अपवर्ड है, यहां से यहां गया तो डिस्प्लेसमेंट इज अपवर्ड, कितना h माइनस h, एंड फाइनली वी आर गेटिंग h इज इक्वल टू u स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा बाय 2g। ये आपका मैक्सिमम हाइट का इक्वेशन आ गया। इसके डिस्कशन आप लोग प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी कर चुके हो। इन द सेम वे दिस विल बी डन, ठीक है। नाउ हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज कहां से कहां तक का डिस्टेंस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज, ये लो, इट्स ओके, ठीक है। अब कैसे, हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए मोशन अलोंग एक्स एक्सिस टू बी टेकन इनटू अकाउंट, क्लियर। s is equal to ut plus half at square, s is equal to ut plus half a t square along x axis, ठीक है। along x axis बात हो रही है, यहां से यहां का जो डिस्टेंस है वो रेंज है, कितने टाइम में ट्रेवल हुआ, टाइम ऑफ फ्लाइट में, ओके। तो sx is equal to r ux, u sine of alpha time total time of flight plus half acceleration along x axis is equal to 0, तो ये 0, इट्स ओके,
अब वैल्यूज प्लेस कर दें बेटा सारी। r इज इक्वल टू u साइन ऑफ अल्फा, टाइम कितना आया था 2u cos अल्फा बाई जी। प्लस 0। तो आपका जो रेंज है दैट इज समथिंग लाइक u स्क्वेयर 2 साइन ऑफ अल्फा कॉस ऑफ अल्फा बाय जी। 2 साइन अल्फा कॉस ऑफ अल्फा कितना बनेगा? साइन ऑफ 2 अल्फा बाय जी। इट्स क्लियर? तो आपका हॉरिजॉन्टल रेंज आ गया बेटा। वही सेम थिंग अब इसके बाद आप फाइंड कर सकते हो कि रेंज फॉर एंगल थीटा एंड फॉर 90 माइनस थीटा इज सेम। मैक्सिमम रेंज फाइंड कर सकते हो व्हाटएवर, जैसे हमने प्रीवियस सिचुएशन में किया था। होप दिस इज क्लियर नाउ। ठीक है, तो गो थ्रू द सिचुएशन एंड ट्राई टू हैव द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट। ठीक है, देयर इज नथिंग डिफरेंट इन प्रीवियस सिचुएशन एंड दिस। बस एक कंपोनेंट्स जो हैं, कंपोनेंट्स को इधर से उधर और उधर से इधर, क्योंकि हमने एंगल को चेंज किया ना। पहले हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में ले रहे थे, अब वर्टिकल। ठीक है, ओके। थीटा, जितने भी प्रीवियस सिचुएशन वाले आपके रिजल्ट्स थे उसमें थीटा आ रहा था, जहां जहां थीटा आ रहा है वहां पे 90 माइनस अल्फा डाल दो। सारे जितने भी टी रेशो बदलने के बाद रिजल्ट मिलेंगे वो सारे यही वाले मिलेंगे जो अभी हमने डिराइव किए। प्रीवियस सिचुएशन में आपको क्या करना है, थीटा की जगह पे 90 माइनस अल्फा डालना है। ओके, तो थोड़ा सा दिमाग चलाए तो वी हैव सो मेनी वेज टू डेवलप अ सिचुएशन। ओके, तो ट्राई इट इन अ गुड वे। फाइन, रिलीजियसली ट्राई करना है बेटा इसको। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सिचुएशन एंड विल बी सॉल्विंग सो मेनी प्रॉब्लम्स ऑफ यू। ओके, ठीक है, बहुत सारे लॉक्स ओपन करेगा इन केस ऑफ योर स्कूल एग्जाम्स as well as in case of competition exams. Okay, thank you, have a nice day.